Hello students, today we are going to study what are the equations of linear velocity and linear acceleration of a rolling body. Okay, now suppose this is the inclined plane on which that body is rolling from here. Okay, now the r is the radius of that path and s is the displacement of that body. यहाँ से यहाँ तक s is the displacement. नाउ वाइल रोलिंग डाउन उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए वो देखते हैं अपन. नाउ सी हियर वाइल रोलिंग डाउन वो ऊपर में है मीन्स दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी. टोटल पोटेंशियल एनर्जी इट इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे अपन लिख सकते दैट इज एम जी एच बिकॉज एम इज द मास ऑफ द बॉडी. G is the acceleration due to gravity and that body is at height h. So mgh it is equal to total kinetic energy. अब ये total kinetic energy means वो linear slide जब भी हो रहा है वो linear motion भी करेगा और rolling motion भी करेगा, rotational motion भी करेगा. So linear kinetic energy plus rotational kinetic energy. Linear kinetic energy is nothing but half mv square. Rotational kinetic energy is nothing but half I omega square. For this I we can substitute mk square. For omega we can substitute v upon r because v is equal to r omega. So omega it is equal to v upon r. So mgh it is equal to half mv square. यहाँ से I की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ से हाफ mv स्क्वायर कॉमन निकलता है इन द ब्रैकेट 1 plus k square upon r square. Okay, m will get cancel. क्या मिलेगा आपको 2gh. ये 2 को यहाँ लेके गए 2gh ये पूरा ब्रैकेट नीचे आए 1 plus k square upon r square it is equal to v square. So v it is equal to under root 2gh upon 1 plus k square r square. This is the formula for the velocity of a rolling body. Now acceleration के formula देखते. Acceleration it is equal to, now see where see that is whenever that body is rolling like this, h is the height. Okay, this is the angle suppose theta. Then this sin theta it is equal to what? Sin theta it is equal to h upon s. Okay, that h and this is your s distance it is covered. So sin theta is equal to h upon s, opposite side upon hypotenuse. So sin theta it is equal to h upon s. s क्या हो जाएगा? h sin theta. इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 रहेगी. We find out the velocity, final velocity v it is equal to under root 2gh upon 1 plus k square upon r square. s पता है आपको, that is the distance h upon sin theta. आपको acceleration find out करना है. We know the kinematic equation v square is equal to u square plus 2as. So v square it is equal to initial velocity 0 plus 2as. v स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए यहाँ पे इट इज इक्वल टू 2 इंटू ए. एस इज नथिंग बट एच अपॉन साइन थीटा. सो ये एच एच कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, क्या रह गया? जी अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ए अपॉन साइन थीटा. सो एट इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर upon r square. This is the formula for the acceleration. Okay, 3 formula अपन ने देखे. That is the total kinetic energy of a rolling body, then velocity and the acceleration. Now that last one, how to find the k square upon r square for any object. k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर देखो वेलोसिटी में, वेलोसिटी के फॉर्मूला में k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है. ये कैसे फाइंड आउट करना है वो देखना है आपको. फॉर अ स्फीयर
For sphere that moment of inertia I it is equal to 2/5 mr square, ये आपको पता है. Suppose this is equation number 1. Again I it is equal to mk square, equation number 2. दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट किया आपने 2/5 mr square it is equal to mk square. ये m कैंसिल हो गया, so 2/5 r square it is equal to k square. Therefore 2/5 it is equal to k square upon r square for the sphere. अगर आपको रिंग के लिए फाइंड आउट करना है, रिंग या हॉलो सिलेंडर, उसके लिए I का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. I it is equal to mr square. ओके, सो k square upon r square. एक बात ध्यान में रखना है, अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला पता है और आपको k square upon r square इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस कैलकुलेशन सिंपली अगर लिखना है तो mr स्क्वायर के आगे जो भी कांस्टेंट वैल्यू है k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू उसके आगे का कांस्टेंट होते हैं 1. जैसे स्पीयर में देखे अपन ने I इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर, ये mr स्क्वायर के आगे क्या है 2/5 इज अ कांस्टेंट, सो k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज नथिंग बट योर 2/5. अगर आपको डिस्क के लिए लिखना है तो I इट इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2 आपको पता है. अभी उसके आगे जो कांस्टेंट है 1/2 है, सो k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज नथिंग बट योर हाफ. इज इट क्लियर? देन रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल लीनियर काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल और लीनियर काइनेटिक एनर्जी टू द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. अगर उसका रेशियो फाइंड आउट करने हैं फॉर स्पीयर, हाउ विल यू फाइंड आउट? I इट इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर. ठीक है, सो लीनियर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर. ये पता है आपको, हाफ I की जगह पे I की वैल्यू रखेंगे 2/5 mr स्क्वायर फॉर द स्पीयर, एंड फॉर ओमेगा स्क्वायर वी कैन सब्स्टिट्यूट v अपॉन r. तो ओमेगा स्क्वायर है तो v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा. इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2/5 mv स्क्वायर. नाउ अभी अपन रेशियो निकालेंगे लीनियर काइनेटिक एनर्जी अपॉन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. दोनों का रेशियो निकालना है तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू राइट हियर दिस हाफ विल बी कैंसिल. क्या बचता है 1/2/5. ये mv स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो रेशियो ऑफ लीनियर काइनेटिक एनर्जी अपॉन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर अ स्पीयर इट इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको 5/2. सो लीनियर काइनेटिक एनर्जी इज टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू 5/2 मीन्स टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों का एडिशन. टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर 7 है तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी 5 हो जाएंगी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपकी 2 हो जाएगी. ओके, in this way we can find out this ratio for the thin walled hollow sphere. उसके लिए भी अपन निकाल सकते. उसके लिए फॉर्मूला है, I के लिए फॉर्मूला है 2/3 mr स्क्वायर. सो लीनियर काइनेटिक एनर्जी इज टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इट्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी. सो लीनियर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू. I के जगह पे ये अभी पहले फाइंड आउट कर लेंगे. I इज इक्वल टू 2/3 mr स्क्वायर, ओमेगा के जगह पे v अपॉन r उसका स्क्वायर है, सो क्या मिल गया आपको 1/3 mv स्क्वायर. ये आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी. लीनियर काइनेटिक एनर्जी अपॉन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू ये जो भी मिला आपको हाफ mv स्क्वायर अपॉन 1/3 mv स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट हियर यू विल गेट 3/2. तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी इज टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू इज टू टोटल काइनेटिक एनर्जी. यानी 3 पार्ट अगर उसके लीनियर काइनेटिक एनर्जी के हैं, 2 पार्ट्स उसके रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के हो जाएंगे और पूरा मिला के उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी अपन निकाल सकते हैं. 5 इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी. इज इट क्लियर टू यू? इन दिस वे we have completed the rotational dynamics chapter. In the next class we will take another topic. Okay, thank you.